डॉक्टर आपके और क्या चाहिए? हिंदी आप कुछ नहीं trying to say something. हाँ थोड़ा सा लाइट्स की वजह से ना बाबा ये ऊपर चढ़ जा आजा पीछे ऊपर चढ़ कैमरे का इवेंट कर थोड़ा उधर शिफ्ट हाँ मन हाँ Follow the right. Sir, left side. Right side, right side. Sir, left side. Thank you Thank so you. much. Right side, sir. Right side. Thank you so much. सर थोड़ा पीछे सर थोड़ा पीछे Hands up. सर यहाँ पे फेवरेट सर लेफ्ट पे सर लेफ्ट मान सर यहाँ पे सर राइट में देखिए थैंक यू सो मच थैंक यू सर आइए पीछे लेना हाँ अरे ये दादा तेरा फ्लैश आ रहा है क्या भी हाँ अभी अरे भाई आज क्या हो रहा है घंटा घंटा 2 घंटा क्या है हैं? कैमरा है तो ये क्या होगा मोबाइल से तो क्या होगा समझता है That's what improvisations are all about. Should we start? नहीं नहीं ये मत सोचिए कि डीडी इज नॉट जस्ट दिव्या दत्ता। हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं इन्हें डीडी इसलिए बुलाते हैं कि डीडी इज शॉर्ट फॉर दूरदर्शन, which means this enchanting mass appeal that this woman has, which DD has, therefore DD, not because of Divya Datta. I've known this
lady for almost 25 years of my life. And she is friend and family. And now a very, very integral part of my day-to-day existence. And I'm very happy and honored that she's actually devoted a chapter to me in this book. I think over the last few years, the most wonderful thing has been that she's managed to push herself, push her own boundaries, explore her multi-talented self, and stretch the elasticity of her own facets, जो कि बेशुमार हैं. इनके रंग हजार हैं और उम्मीद यही है कि ये हमेशा ये रंग बरकरार रहे. सॉरी, इनकी मम्मी को मैं पर्पल बुलाता था. पर्पल इसलिए कि पर्पल पर पंजाबी में वो हमेशा पर्पल ही कहती थी. एंड शी वाज वेरी हैप्पी दैट आई यूज्ड टू कॉल हर पर्पल. बट ये मेरे लिए चहचहाती, लबलबाती, भिन भिनाती, हमेशा मुस्कुराती सतरंगी तितली है. And that you will get to experience in this book. The book itself is very simple, free-flowing, no holes barred, but straight from the heart. So I think it's best that we call this Satrangi Titli on stage and ask her why this book? Divya? Thank you, Raju. You always set the mood. हमेशा बहुत खूबसूरत. सबसे पहले thank you so much everyone for being here. इतना अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम के बाद रूबरू सबसे मिलने का मौका मिला, and I get to celebrate my book with everyone that's so dear to me. Why this book is because everyone asked me, what about your next book? And I was like, what am I so passionate about? And the only one word that came to my mind and my heart was movies. This journey has been beautiful, exceptional. And in spite of the lows that one has, there have been such amazing people in my journey that have made it so amazingly beautiful for me. ये किताब उनके लिए है. बहुत बार हमें मौका नहीं मिलता ये कहने का कि हम गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं, we just chat, we work together, but never do we get an opportunity to say, hey, listen, you really matter a lot to me and you mean a lot to me. So this book is for those very special people who mean the world to me. ये मेरी तरफ से सबको शुक्रिया है. बच्चन साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी for writing the foreword. He really made it special last time was शबाना जी, और इस बार हमने रोल रिवर्सल किया. I want to thank Penguin, जिन्होंने ये मेरी दूसरी किताब छापी. I want to thank Vikas Tomar, that's Vikas Tomar. ये जो कवर है ये इन्होंने तस्वीर खींची है इसकी, so everyone's really liked it, so thank you. And thank you Vaishali Mathur, who's been my editor दूसरी बार, and I'm missing her today because she's in Delhi. पिछली बार हमारे साथ थी यहाँ पर लॉन्च पे. अब सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सबको एक एक करके उन लोगों से मिलाऊँ जितने भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं. I met a director after Veer Zara. I didn't meet him that time. I met him much before. We did an ad together. And Veer Zara के बाद एक ऐसा वक्त था जब I was not working at all. I stopped taking on movies, and it was like sab Punjabi, sab chulbule roles, and there comes this phone call, and this director says, I want you to be cast as Jalebi. So I said, is it a Punjabi vivacious girl? He said, no. I said, then why are you casting me? He said, because I think you can carry it off. And then I met him. He gave me the role that was
totally different from what I've ever done before, what I ever thought I could do. And it wasn't just once, it's been many times. He's always laid his faith in me as an actor, given me my most landmark movies. बुलाऊं आपको राकेश जी, राकेश मेहरा प्लीज आइए ना, कुछ लफ्ज हमारे साथ शेयर करिएगा. ये किताब आप सबकी है, सो प्लीज आइए. She always puts me in very difficult situation. Set पे हो, अरे God. हाँ, कुछ तो बात मानती नहीं है, सेट पे नहीं मानती, जो सीन दो उसका उल्टा होता है, जो लाइंस दो वो अपनी लाइंस, फिर पता नहीं, फिर भी जादू, तो मैं चुप ही रहना मेरे को वो बेटर है. वो मैं बहुत पहले सीख गया था, फर्स्ट टाइम मिल के. दिव्या, इससे हम्बलनेस that you know, normally people talk about themselves, and why not? I'm not saying that's wrong, but they talk about their work, and here you have spoken about the sum of things, how and while you are the whole, you've given all of us that little place, you know, एक इतनी बड़ी हवेली में एक छोटा छोटा कमरा हम सबको दे दिया. But friends, let's not mistake her humbleness for she's extremely fearless, and what can I say about fearlessness of her? There's a I'm not such a good orator, but there's a Subramanyam Bharati poem he's taken from the Vedanta and taken it further, which when I see you, it always echoes in my mind. जावेद जी माफ़ी चाहूँगा, सब उल्टा सीधा होने वाला है. हाँ, मतलब after many narrations and everything, after 15 minutes after narrating something to me, telling about a song, he doesn't want to see my face again. कि यार ये इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है ये. तो उन्होंने लिखा था कि on fearlessness best described for Divya, कि समझ संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, समझ संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, कलंक और उपहास की मुझ पे वर्षा हो. मेरे दोस्त मेरे भोजन में विष की कणा मिला दे, अस्त्र शस्त्र से व्यूहबद्ध मेरे दुश्मन मुझ पे आक्रमण करे, चाहे आसमान ही टूटकर मेरे सर पे क्यों ना गिर पड़े. एक साल जो आपने काम नहीं किया, मुझे ऐसे आपके बहुत साल मालूम है. अपनी जीविका के लिए चाहे मुझे द्वार द्वार अलग ही क्यों ना जलाना पड़े, मेरे दिल में कोई भय नहीं. That's Divya for you. I think this is going to be a truly emotional evening. Shukriya, thank you. And thank you, Bharti, for always being such an emotional support and right there always. मैं जब पंजाब में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी तो बहुत मुश्किल सीन था, और मेरी प्रोड्यूसर मंजीत मान और डायरेक्टर मनोज पुंज एकदम स्क्रिप्ट लेकर आए और वो सीन याद कर रही थी. तो 4 बच्चे ऐसे आए उठकर, मैम ऑटोग्राफ. तो मैं कहा भाई बाद में आना, मैं बहुत मुश्किल सीन कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आना. थोड़ी देर में देखा तो बहुत वही लड़कों का रश एक किसी के साथ में था, और वो लगे थे उनको अच्छे से सिग्नेचर्स करके उनको चाय वाय पिला रहे थे. एंड दैट वाज मान साहब. एंड आई वाज लाइक, मान साहब आप भी तो मुश्किल सीन कर रहे हो, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते? तो ही सेड, इन्होंने तो सानू बनाया है, इन्हों टाइम देना बहुत ज़रूरी है.
So I'm sure this much you understood, whoever doesn't know the Punjabi, but and I learnt my Punjabi. जितनी भी सब मुझे कहते हैं कि तू बहुत अच्छी पंजाबी बोलती है, उसका श्रेय मैं मान साहब को देती हूँ, बिकॉज मैंने इतनी पंजाबी मुझे पंजाब में इतनी नहीं आती थी जितनी मुंबई में आकर आई है. एंड what I learned from him was lots of humility, lots of love for people around. And ये जब मिलते हैं तो आपके मतलब अपना सर आपके हाथों पर रखते हैं, which I feel मतलब so much love and respect and warmth. I think this is one home that I call mine in Mumbai. And thank you, मान साहब. मैं आपको बुलाऊं stage पर, please. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रान कि आपने मुझे इस खूबसूरत महफ़िल में इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी, प्यार दिया, सत्कार दिया. आपने 165 पे जो मेरे बारे में लिखा है उसके कुछ अंश आपने पढ़े हैं. मुझे 165 पेज है, मैंने याद है. इतना अच्छा लगा मुझे, और आप लोगों के दीदार हुए, इसलिए मैं और भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आज जो भी है बहुत ख़ास है, क्योंकि आपके आसमान में चमकते हुए सितारे हैं वो इस किताब में शामिल हैं. और मैं आपके लिए एक अपनी छोटी सी नज़म पढ़ना चाहूँगा. थैंक यू. शबाना जी, एक दफ़ा आप एयरपोर्ट पे, हम एक ही फ़्लाइट में आए थे, आप एक जगह पे खड़े हुए थे. मुझे लगता था कि इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी की, तो मैंने इनके चरणों को स्पर्श करके मैंने बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, घर में जाना चाहते हैं? कहते हाँ, मेरी गाड़ी आई नहीं अभी तक. तो मैं क्या, आइए प्लीज़ इसमें बैठिए. तो वो छोड़ने का सौभाग्य जो था, उनको घर में छोड़ने का सौभाग्य था, वो मुझे आज भी याद है. क्योंकि उस वक्त जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो उसमें हमको देखा तो बच्ची सी थी बिल्कुल, अभी भी बच्ची हैं, अभी बची हैं. मैंने वो एक छोटी सी गल याद आ रही है कि पंजाबी का जो अंदाज़ है वो एक अलग ही है. 1947 के बाद ट्रेन टू पाकिस्तान याद आ गया मुझे इस बात से कि वहाँ से केदीप साहब, जो बहुत खूबसूरत कॉमेडियन थे पंजाबी के, गुज़र गए हैं. उन लोगों ने एक वाक़या सुनाया कि मैं जब पाकिस्तान से या 1947 के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरा बाप है जो मुझे मेले में ले गया, मुक्तसर के मेले में. तो वहाँ जाके मेरा दिल किया, और लड्डू जलेबियाँ पक रहे थे मेले में, तो अलग अलग एक अंदाज़ है ना. तो उसमें मैंने कहा, बापू मुझे समोसा ही ले दे. वो कहना ये कोई समोसे है? समोसे रह गए पाकिस्तान. चल बापू आप रसगुल्ला दे दे. कहता कोई रसगुल्ले, कोई खोण का मतलब है नहीं सी मनदीप. कहता समोसे रसगुल्ले तो रह गए पाकिस्तान. खैर वो सो गए. दूसरे दिन स्कूल जाना था तो बाप ने उठाया, कि उठा ही नहीं है ये लड़का. तो उसने उठाया और कहता उठो बेटे, चल स्कूल चल. कहता किहड़े स्कूल? स्कूल रह गए पाकिस्तान. एक वट के चपेड़ मारी. और कहता मैं तेरा प्यो है. वो कहता तू कहता प्यो है? प्यो तो रह गए पाकिस्तान. सो ज़बान का अपना एक मज़ा है, और मैं थोड़े से बोल आपके लिए. कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां. कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां. अपने हिस्से दी दुनिया में थों वार दियां. अपने हिस्से दी दुनिया सबसे बड़ी दिल की दुनिया होती है.